Hey everyone, welcome back to Musafir Talks, episode 11. And this episode is very special because we have our chief guest, Dr. Radhakrishnan Pillai, sir. Thank you so much, sir, for giving your valuable time. Sir is already a very famous personality. I'm blessed to have him on my platform. He's a renowned author, top corporate coach. Apart from that, TEDx into Joe speaker, youth influencer, helping people to grow their life more better, and Chanakya's principle, best mindset analogies towards business and life growth mindset. So that's just a small thing, brief introduction about him because he has a lot of achievements. If the list goes on, it will take a whole day. So first of all, thank you so much, sir, for coming in this episode and giving your valuable time. And I'm so happy that you're here. And how's everything going on your end, sir? And how are you feeling right now? I'm feeling so nice. Thank you so much for inviting me on the show. We Thank you, met sir. first time face to face in your city of Jaipur, and now we are meeting digitally. And thank you so much for inviting me on this Musafir show. And for Thank you, all sir. the listeners, it's an honor to present some of the ideas that we are going to discuss today. Thank you. Thank you, sir. So let's start this series and it will be majorly focused on Hindi. हम चाहेंगे कि हम अपने देश के लोगों को काफी कुछ अच्छी knowledge provide कर पाए. So, sir, I have prepared a good set of questions in which also we will have something like, 1 minute questioning round and things like that also in between just for a fun. Till then, मेरे पास कुछ set of questions है जो मैंने आपके लिए prepare करी है. We'll start with that. So, जी as मैं देख रहा था आपके बहुत सारे पॉडकास्ट फर्स्ट ऑफ ऑल रणवीर भैया के साथ थे. ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सन आई हैव सीन. सो उनके साथ आपने काफी टॉक शोज किए ना. आप एज अ इंस्पिरेशन मॉडल इतने पैशनेट है यूथ को ड्राइव इन करने में, उनकी लाइफ को चेंज करने में. सो ओवर द इयर्स आप इसको कैसे सस्टेन करते हैं? हाउ यू जस्ट सी योर लाइफ एज एन इन्फ्लुएंसर इन दैट रोल? वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन. एक बात आपको बताता हूँ कि एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस. Technically speaking, you cannot be a youth forever at the physical level. Like I'm राइट. 48. यस Okay, सर. so technically I'm no more a youth because I think the world, whatever the thinkers are, United Nations defines youth till the age of 35. ओके. So technically I'm not youth anymore, but the way to remain young mentally is two things. यस सर. Number one, spend more time with the youth. So ओके. since I'm in a university and colleges, I visit a lot of colleges and universities. यस सर. So fortunately, you are able to meet a lot of young people and spend time with them. So first thing is spend time with the youth, and the second is think like a youth. Oh, that's a A great lot of thing. people are a lot of people spend time with the youth, but they say, मैं बड़ा हूँ. They don't think like you. So the way I have been able to maintain touch is, spending a lot of time, and I learn from them. Like today, I'm learning a lot from you also through during this particular podcast. So young बंदों से मिलो, उनसे सीखो, उनके साथ रहो, उनके जैसे सोचो. This is a secret to be young forever. ओह, दैट्स अ ग्रेट आंसर सर. मतलब बहुत इंस्पायरिंग तरीके से आपने बताया कि यूथ के साथ कैसे हम टच में रह सकते हैं. एंड सर, एज यू नो, अभी यूथ जो है, अभी देयर इज अ टाइम जिसे हम बोलते हैं घोर कलयुग आने वाला है. उससे पहले इफ वी से पीपल स्टार्ट गेट टू स्पिरिचुअलिज्म, बहुत सारा यूथ है जो डीमोटिवेटेड होता है. ये कैसे आप, बिकॉज मैंने आपने देखा आपने मेडिटेशन के ऊपर, बहुत सारी साधनाओं के ऊपर बहुत सारी चीजें बताई हैं. सो हाउ डज स्पिरिचुअलिज्म इम्पैक्ट अ पर्सन्स लाइफ? व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट? इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म जी. शुड बी द फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ. इट शुड ओह. नॉट बी लाइक अनदर हॉबी. अच्छा, आप क्या करते हो? डांस करता हूँ. आप क्या करते हो? पेंटिंग करता हूँ. आई प्ले स्पोर्ट्स. एंड व्हाट डू? आई डू मेडिटेशन. इट कैन नॉट बी कैटेगराइज कि चलो मैं ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, अध्यात्म भी करता हूँ. नो, इट्स अ फाउंडेशन. जिंदगी का सब कुछ जो आप करना चाहोगे, सपोज यू वांट टू बी इन द फील्ड ऑफ बिजनेस और पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स, एनी फील्ड. ओके, remember the base should be spirituality. And if you are actually a spiritual person, wherever you go, whatever you do, you'll actually achieve success, not only in the spiritual world but also material world. So it's very important to have a spiritual base to succeed even in the worldly matters. Okay, that's a great answer. So, I mean, जैसे जैसे जो 7 चक्र का मेडिटेशन होता है, देन दीप ज्योति का एक मेडिटेशन होता है जिसमें हम प्रोएक्टिवली फोकस करते हैं. सर, तो आप कुछ उस पर एनलाइटन करना चाहेंगे कि हाउ, जैसे किसी को बेस लेवल से स्टार्ट करना है, ही इज नॉट फोकस्ड इन लाइफ, एंड उसको एक मेडिटेशन लेवल अचीव करना है, स्पिरिचुअलिटी में आना है. सो हाउ कैन ही स्टार्ट फ्रॉम अ बेस लेवल? व्हाट आर योर लाइट्स ऑन दैट? बहुत अच्छा सवाल किया. आप अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी की ओर कैसे आएंगे?
जी आपने मेडिटेशन के बारे में कहा, जो हिंदी या फिर संस्कृत जो शब्द है मेडिटेशन के लिए, उसे हम कहते हैं ध्यान। हाँ ध्यान करना। देखिए, आई टेल यू, फॉर फर्स्ट टाइम बिगिनर्स जो पहली बार ध्यान कर रहे हैं, यू विल रिक्वायर नंबर वन ए गुड टीचर। एक अच्छे गुरु लगते हैं जो आपको बताएंगे। एंड देयर आर मेनी गुरुस एंड मेनी टेक्निक्स। बहुत सारे तरीके के मेडिटेशन होते हैं, जैसे आपने बताया दिया के ऊपर मेडिटेट करो, जी या श्री यंत्र के ऊपर मेडिटेट करो। और बहुत सारे टेक्निक्स है, क्रिया योग, सुदर्शन योग, विपश्यना इज अ टाइप ऑफ मेडिटेशन। तो बहुत सारे टाइप ऑफ मेडिटेशन। बट लेट मी टेल यू, फॉर ए बिगिनर तीन चीज करनी चाहिए टू बी स्पिरिचुअल, अध्यात्म में जाने के लिए। सबसे पहले, इफ पॉसिबल, अगर हो सके तो एक फिजिकल गुरु के पास आपको जाना चाहिए। बहुत जरूरी है। और भारत जो देश है अपना, वहाँ पे जी सर। बहुत सारे गुरु हैं। So you can find maybe a spiritual organization where you can जी go and find a guru, and the guru, he or she will definitely guide you in the path of meditation. दूसरा जो चीज है आपको करना है, इवन इफ यू डोंट गो टू स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट यू कैन डू, स्टार्ट रीडिंग बुक्स। बहुत सारे स्पिरिचुअल बुक्स हैं। फॉर एग्जांपल, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, या भगवत गीता बोलो, या बहुत सारे अलग अलग किताबें हैं, तो स्टडी दैट। थर्ड चीज जो मैं आपको कहूंगा कि टुडे फॉर्चुनेटली थैंक्स टू द इंटरनेट रेवोल्यूशन, हमको बहुत सारे वीडियोस भी मिलते हैं। करेक्ट। लिसन टू लॉट ऑफ वीडियोस, यू कैन अटेंड ऑनलाइन कोर्सेज। ये सब आप करोगे तो योर माइंड विल बिकम वेरी मेडिटेटिव। और मैं आपको एक छोटा सा टिप दूंगा। देखो, मेडिटेशन इनिशियली विल नॉट बी वेरी इजी। जब करेक्ट। पहली बार कुछ भी शुरुआत करते हो, इट्स नॉट इजी। अगर आप जिम में जाना चाहोगे तो अपना माइंड बोलेगा नहीं यार, और थोड़ा आधा घंटा सो लो, कल से शुरू करते हैं। तो कल कल कर कभी नहीं होता। टिल यू रिक्वायर अ फ्रेंड, टेल्स यू चलो यार जाते हैं जिम, मैं भी हो तुम भी हो। सो इफ यू कैन इन द इनिशियल स्टेजेस हैव सम फ्रेंड हु इज आल्सो ऑन द स्पिरिचुअल जर्नी, दैट विल हेल्प यू। जिसे हम कहते हैं सत्संगी। मेरे को सत्संग करना है, तुम्हें भी करना है, सो हाँ दोनों साथ में करते हैं। दैट विल आल्सो हेल्प। दूसरा, द माइंड विल नॉट अलाउ यू टू सिट क्वाइटली फॉर मेडिटेशन। ऐसा करेक्ट सर। बोलते हैं कि दिन में 1 घंटा मेडिटेशन करने लगे। 1 घंटा। एक काम करो, मैं तो कहता हूँ 10 मिनट से शुरुआत करो, 20 मिनट से शुरुआत करो। सिट डाउन क्वाइटली फॉर 20 मिनट्स। और ये मत सोचो कि सिट डाउन क्वाइटली मतलब आपको पैर दोनों बांध के बैठने हैं, ऐसा नहीं है। शांति से, इफ यू कैन जस्ट कीप योर मोबाइल एंड ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अवे एंड सिट फॉर 20 मिनट्स, दैट्स अ गुड बिगिनिंग। धीरे धीरे धीरे, ओके, you will grow in meditation. And finally, remember, you have to work with your mind, not just your body. Because when you think about meditation, आप ध्यान के बारे में सोचते हो, तो हमारे मन में ऐसा था कोई व्यक्ति होते हो पैर पकड़ के हाथ पकड़ के बैठता है। ऑफ कोर्स, शांति से बैठना, अपने शरीर को शांत रखना, वो भी जरूरी है। बट रिमेंबर, यू आर वर्किंग विद द माइंड। तो अपने जो मन में विचार आते हैं उसको कम करना और उसको अपने कंट्रोल में लाना, पॉजिटिव बनाना, ये सब धीरे धीरे विद प्रैक्टिस हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि पहली बात, आप सत्संग में आ जाओ, हैव सम फ्रेंड्स इन द स्पिरिचुअल जर्नी, गो टू एन ऑर्गेनाइजेशन, गो टू एन आश्रम, गो टू ए टेम्पल, वेर एवर यू कैन। वहां पे बहुत सारे अच्छे अच्छे गुरुज मिल जाते हैं भारत में तो, और आजकल तो दुनिया भर में मिल जाते हैं। एंड रीड बुक्स, और कुछ भी नहीं तो कम से कम दिन में यस आधा सर। घंटा यूट्यूब पे कोई अच्छा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर वीडियो देख लो, एंड बिलीव मी, आप अपने ध्यान में आगे बढ़ जाओ। दैट्स अ ग्रेट आंसर सर। जैसे आपने मेंशन किया, स्टार्टिंग में मेडिटेशन करना हार्ड होता है। आई ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग, मेरे को भी बहुत इफेक्टिवली लगा। जैसे आपने इसको अच्छा रिलेट किया जिम से, वी नीड अ पार्टनर की जो सपोर्टिव हो जिम जाने के लिए। सो दैट वाज अ ग्रेट एग्जांपल सर। एंड जैसे हम स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं, इफ पॉजिटिव थिंग्स एग्जिस्ट, देयर इज समथिंग कॉल्ड नेगेटिविटी आल्सो। जो मैंने आपका पॉडकास्ट देखा था रणवीर भैया के साथ, उसमें एक मेंशन हुआ था ब्लैक मैजिक का। एंड यू नो देयर आर सम पार्ट ऑफ इंडिया जहाँ पे ये चीजें परफॉर्म होती है, रिचुअल्स परफॉर्म होते हैं, जहाँ पे लोगों को ऐसे ब्लैक मैजिक की फीस दे के चीजें कराई जाती है। सो व्हाट्स योर थॉट एंड दैट? जैसे मान लीजिए कभी कभी मैं घर आता हूँ, तो कभी कभी मैंने कोई नींबू क्रॉस कर दिया या मिर्ची क्रॉस कर दी, तो मेरी मम्मी मेरे को हमेशा टोकती है, कभी ऐसा काम मत करना जहाँ पे कहीं नींबू मिर्ची देखे, साइड से हट जाओ। तो उसके पीछे का क्या रीजन है? व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट? डू दे रियली एग्जिस्ट इन दिस सॉर्ट ऑफ फॉर्म? देखिए कैसे होता है कि पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड कॉल्ड मैजिक। हम्म। ब्लैक मैजिक के बारे में बाद में बात करते हैं। जी। मैजिक का मतलब क्या, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जादू। हम्म। और अगर आप ध्यान से सोचोगे,
हमको दिखता है और समझ में नहीं आता है कैसे हो रहा है. करेक्ट करेक्ट. So we don't know the logic. That's why we call it magic. When you don't understand the logic, you call it magic. और अगर आप जादू सीखना चाहते हैं तो आपको पता जाती है तो इतना सिंपल है. If you are a magician, if you know how to actually play, you know the secrets. It's not secret. Only thing is वो दिखता नहीं है. श्योर सर. So coming back, magic वो होता है जिसका लॉजिक नहीं होता, लेकिन आप लॉजिकली देख लो तो समझ में आ जाएगा. So remember one thing, magic is part of human nature. हमको जो कुछ अद्भुत दिखता है, वाव, तो हम कहते हैं मैजिक है. Now जो दो तरीके हैं, वन इज ब्लैक मैजिक एंड वन इज कॉल्ड व्हाइट मैजिक. बहुत सारे लोग को व्हाइट मैजिक क्या है पता नहीं. हाँ, ये तो मुझे भी अभी तो पता चला, ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक कुछ होता है. जी जी. जी सर. सो ब्लैक मैजिक हम बोलते हैं जादू टोना, जो किसी के लिए हम नुकसान के लिए करते हैं. बट यू विल बी सरप्राइज, देयर इज व्हाइट मैजिक आल्सो, किसी के फायदे के लिए करते हैं. दैट्स स्ट्रेंज सर, व्हाइट मैजिक. I would suggest that all of you should Google about what is white magic, because suppose मेरे को एक दोस्त को blessings भेजने हैं, ओके, वो अपने जिंदगी में बहुत बुरी वक्त से गुजर रहा है, तो हम लोग पूजा पाठ करते हैं ना. हाँ जी. So you can do some पूजा पाठ for him also. हम लोग कहते हैं कि indirectly we send blessings. Now black magic उल्टा है, when you actually have a negative state of mind और आप उसका नुकसान चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ईर्ष्या, यू आर फीलिंग जेलस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. अरे वो मेरे से आगे निकल गया, सक्सेसफुल हो गया, उसके फैमिली में बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी है. हम लोग क्या करते हैं, जादू टोना या फिर गलत इस्तेमाल करके उसको नुकसान करते हैं. यूजुअली व्हाट दिस ब्लैक मैजिशियंस डू, ये जो ब्लैक मैजिक की विद्या जानने वाले लोग क्या करते हैं, उस व्यक्ति को नुकसान करने के लिए पूजा पाठ करते हैं. अब जैसे आपने बोला नींबू बोलो या फिर कोई और वेजिटेबल या फ्रूट, उसके ऊपर करके उसके घर के बाहर या कहीं रख देते हैं, राइट. हाँ हाँ हाँ. तो वो जो होता है दैट गेट्स चार्ज, और समझो वहां से जाते हैं, वो पूरा नेगेटिविटी आप में आ जाती है. सो ऑलरेडी द पर्सन इज नेगेटिव अबाउट यू. दूसरा, उसने पूजा पाठ वगैरह करके ब्लैक मैजिक यूज करके और नेगेटिविटी बढ़ा दी और आपको ट्रांसमिट करेंगे. अब आपका सवाल है कि हाउ टू अवॉइड ब्लैक मैजिक. Yes, correct. Remember, the strength or the way to avoid black magic is mental strength. जो मनुष्य का जो मन होता है, वो अगर स्ट्रांग हो जाए, उसमें शक्ति आ जाती है, then nothing can affect a person. Correct. तो मैं कहता हूँ कि भगवान पे विश्वास करो. भक्ति की शक्ति is the strongest one. Like I give a simple example, ब्लैक मैजिक की नहीं बात करूंगा. मैं कहूंगा कि there was this particular राक्षस, राजा था, जिसका नाम था हिरण्यकशिपु. He was very powerful, बहुत शक्तिवान था. अभी उसका जो बेटा था, सब जानते हैं, प्रहलाद, बराबर. तभी राजा था, तो भगवान विष्णु के भक्त हो गए थे, हरि भक्त, नारायण करते रहते थे. तो राजा, उसको अच्छा नहीं लगा, तो राक्षस कुल का है, मतलब मेरा बेटा ये भगवान का क्यों नाम लेता है. करेक्ट. लेकिन उसने बहुत सारे यंत्र किए उसको नुकसान पहुंचाने के लिए. कहते हैं पहाड़ों से उसको फेंक दिया, आग में जला दिया, ऐसे सब ट्राई किया, लेकिन तो कुछ नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि उसके अंदर भगवान की भक्ति थी. और फिर हमें पता है कि इतना नुकसान करने के बाद भगवान परेशान हो गए कि उनको आखिर में नरसिम्हा अवतार लेके आके उसे बचाना पड़ा. तो कहने का मतलब क्या, नथिंग कैन अफेक्ट यू. कोई भी चीज आपको नुकसान नहीं कर सकती. जादू टोना हो, ब्लैक मैजिक हो, कुछ भी हो, आपके अगर मन में दृढ़ संकल्प हो और भगवान पे विश्वास हो तो. So if somebody is trying black magic on you, you try the path of devotion. Believe me, nothing can. That's a great answer. मतलब ये सारी चीजों को एक फुल स्टॉप लगा दिया आपने. जो ये सक्सेस है, वो सक्सेस मंत्र है आपका डिवोशन एंड स्ट्रॉन्ग माइंडसेट. दैट्स अ ग्रेट थिंग सर. आई रियली लाइक, बहुत अच्छा लगा ये चीज सुन के. एंड सर, जिन लोगों को यहाँ पे नहीं पता है, आप पीछे सर के बैकग्राउंड में देख सकते हैं, सर एक कंपनी के फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं, चाणक्य आन्विष्की, वेयर ही tells and teach people about Chanakya's principle, how you can create wealth. So you can also visit his website for the same. This would be description में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो और वहां पे आप पर्सनली सर से क्वेश्चंस भी कर सकते हो. नाउ कमिंग अहेड सर, जैसा आप जानते हैं अभी बहुत ज्यादा यूथ वेल्थ क्रिएशन में आना चाहता है. देयर इज एवरीवन हैविंग कि मुझे
मिलियनर बनना है, बिलियनर बनना है, बट सस्टेनेबल रास्ते नहीं है लोगों के पास। अगर वो फॉर एग्जांपल हम कोई XYZ चीज देते हैं कि उसने ये देखा कि यूट्यूब बहुत अच्छा करियर है, वो यूट्यूब पे शिफ्ट हुआ, बट उसको वहां सक्सेस नहीं मिलती तो वो जल्दी डीमोटिवेट हो जाता है। सो आपका क्या थॉट है कि वेल्थ क्रिएशन के स्टेप्स क्या होने चाहिए एक यंग एंटरप्रेन्योर के लिए या फिर एक यंग यूथ के लिए, एंड हाउ उसको वो सस्टेन कर सकता है? व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट? मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जी जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस कम्युनिटीज हैं, जी जी। गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी, बहुत सारे कम्युनिटीज हैं। हम्म। उन उनसे हमें सीखना है। क्या सीखना है? वेल्थ क्रिएशन डजंट हैपन ओवरनाइट। करेक्ट। चलो आज मैंने कंपनी शुरू कर दी, आज मेरे पास यूट्यूब का आइडिया मिल गया, तो कल का कल मैं बिलियनर बन जाऊंगा, ऐसा होता नहीं है। सो मैंने सोचा इट्स ऑलवेज ए लॉन्ग टर्म गेम। हम्म। समबडी आस्क्ड ए बिलियनियर, एक बहुत बड़ा अरबोपति था, जी। किसी ने उनको पूछा, यू बिकेम सक्सेसफुल ओवरनाइट, हम्म। आप एक दिन में सडनली आप बहुत अमीर बन गए, यू बिकेम सक्सेसफुल ओवरनाइट, एंड ही सेड नो, you may be right that I became successful overnight, but the night was too long. ओके। वो वो जो अंधेरा है हमें दिखता नहीं, हमें सिर्फ वो उजाला दिखता है। करेक्ट। सो कहने का मतलब क्या है कि यू कैन डिसाइड विच फील्ड यू वांट। ओके, हम्म। यूट्यूब करना है, कोई कंपनी शुरू करनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, लेकिन लोगों को नहीं पता कि यू हैव टू डू इट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मिनिमम 3 years। यस सर। गुजराती मारवाड़ी कम्युनिटी में कहते हैं दुकान खोला तो 3 साल बंद मत करना। द ओ, फॉर्मूला इज 1000 days। ये बात मेरे को प्रणव सर वो ने भी कहते सिखाई थी। Like those who don't know, Pranav sir is the CEO of Chanakya Anvishki, and he's working with sir. And हमारा फर्स्ट एपिसोड जो हुआ था वो प्रणव सर के साथ हुआ था on principles of Chanakya, how he used for wealth creation and different things. So वो भी लिंक में डाल दूंगा। एंड प्रणव सर ने भी एक चीज मेरे को बोली, 1000 days फॉर्मूला फॉर सक्सेस इज यू हैव टू वर्क 1000 days विदाउट सीइंग कि एक्सपेक्ट नहीं करना रिजल्ट क्या होगा, क्या आउटकम आने वाला है, सिर्फ मेहनत करने पर ध्यान देना। तो सर ने वो जो कोड डाला आप उसको जरूर याद रखिएगा। यस सर, दैट्स द थिंग। और दूसरा बात जैसे आपने बताया वेल्थ क्रिएशन। ओके, यस सर। वेल्थ क्रिएशन इज नॉट अ सेल्फिश मोटिव, मेरे लिए पैसा बनना है, दैट्स वेयर मेनी एंटरप्रेन्योर्स गो रॉन्ग। आपको बिलियनर बनना है, दैट्स अ वेरी सेल्फिश जर्नी। वेल्थ क्रिएशन इज क्रिएटिंग वेल्थ फॉर एवरीवन, योर एम्प्लॉइज, योर पार्टनर्स, योर शेयर होल्डर्स, योर स्टेक होल्डर्स। सो अगर आपको पैसा बनाना है तो ठीक है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर ये सोच रहे सबके लिए पैसा बनाओ, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट एंड द कंट्री। देखो इतने सारे लोगों को मैंने देखा है वो टैक्स नहीं देना चाहते, हाँ करेक्ट। एंड देन वी से करप्शन है, ये है वो है। रिमेंबर वन थिंग, करप्शन गवर्नमेंट में है वो एक बात है, जी बट सर। व्हाट अबाउट करप्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स? जो करेक्ट करेक्ट। टैक्स नहीं देना चाहते वो भी करप्शन ही है ना। हाँ। सो आई थिंक यू शुड बी प्राउड दैट यू आर कंट्रीब्यूटिंग एंड क्रिएटिंग वेल्थ फॉर एवरीवन। देखो ये जो है कि मुझे बिलियनर बनना है, देन यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर, देन यू आर ए पर्सन हु ओनली वांट्स मनी फॉर योरसेल्फ। करेक्ट। फिर आप देखोगे उनके पर्सनल लाइफ में लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। In fact, they'll become so selfish that they don't want to share their wealth even with their family members. ऐसे Forget नुकसान something. होता है। बिल्कुल, तो मैं ये कहूंगा कि वेल्थ क्रिएशन इज नॉट ए लोनली जर्नी, एंड इट शुड नॉट बी जर्नी ओनली फॉर योरसेल्फ। तो मेहनत करो, स्ट्रैटेजी बनाओ। यस, लोग, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं फिर भी सक्सेस नहीं पाते। तो मैं कहता हूँ कि हैव ए स्ट्रैटेजिक प्लान, फिर मेहनत करो, एंड देन बिलीव मी, बाय गॉड्स ग्रेस, ये सृष्टि का नियम है, इट्स ए नेचुरल लॉ that anybody who works very hard with strategy will definitely succeed one day. Surely आप wealth creator बनोगे अपने लिए और सबके लिए। दैट्स अ ग्रेट थिंग सर। सर ये जो आपने एक हमें एनलाइटन किया इस चीज पे बहुत अच्छा था। एक बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल थिंग जो मेरे मन में है, एंड मैं अपने आसपास भी देखता हूँ कि जो हम लोग कैसे युवा हैं जो 19-20 साल के हैं, और भी लोग हैं जो 2020 मिड 25 में हैं, सोसाइटल प्रेशर होता है, सक्सेस नहीं मिलती है, डिमोटिवेट हो जाते हैं, उस राह से भटक जाते हैं, अलग चीजों में आ जाते हैं। सो एक इंसान जो ये इस रास्ते पे जा चुका है वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू कैसे अपनी जिंदगी में उभार सकता है, या फिर क्या ऐसी चीजें करे कि वो अपनी लाइफ के ट्रैक पे वापस आए विद सेम मतलब सेम मोटिवेशन एंड डेडिकेशन? सो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे?
इसके लिए मैं एक सिंपल सा आपको एक नुस्खा दूंगा. आई गिव वन टिप. जिंदगी में कुछ भी करो, बड़ों का आशीर्वाद लेके करो. That's a great. बिकॉज क्या होता है कि हमारे पास जिंदगी का अनुभव नहीं होता. Hmm. इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो. नो, जैसे आपने कहा 19-20 साल का हूँ, पहली बार कुछ कर रहा हूँ. बड़ों का आशीर्वाद लो, बट करना आपको है. एंड देन उसमें से जितने बड़े लोग हैं आपके घर पे, उसमें से कोई भी बड़े लोग को एक को अपना मेंटर बनाओ. ओके, चाणक्य वाज अ मेंटर फॉर चंद्रगुप्त मौर्य. ही वाज आल्सो Hmm. वेरी यंग, वो भी बहुत युवा था. अगर आपके पास कोई मेंटर हो तो आपको कभी फेल होने नहीं देगा या नहीं देगी. सी द थिंग इज दैट, इमेजिन यू गो टू अ पर्सन से कि मुझे बिजनेस करना है, उससे आशीर्वाद लिया. बोलते आप इतना बिजनेस अच्छा कर रहे हो, मैं आपका शिष्य हूँ. डू यू थिंक दैट पर्सन वांट्स यू टू फेल? No, never. कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि Yes, sir. अपना स्टूडेंट फेल हो जाए. Correct. ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाई करनी है, एग्जाम लिखने हैं, वो सब ठीक है. तो मैं कहता हूं कि अगर इंस्पिरेशन कम होती है, इसका रीजन ऐसा है कि आपके पास कोई इंस्पायर करने के लिए नहीं है. द बेस्ट पर्सन टू इंस्पायर यू इज योर गुरु, योर टीचर. तो मैं कहता हूँ एक मेंटर, एक कोच, एक टीचर अपने जिंदगी में रखो. और कभी भी आप भटक जाए, if you are ever living that path and you're feeling demotivated, go to him or her. They'll tell you, don't worry beta, I'm with you. Correct. एक शब्द है वेरी इंपॉर्टेंट. और ये मेरे जिंदगी में मेरे मेंटर्स भी समझ. तो कहते हैं याद रखना, दो लोग तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, एक भगवान और Hmm. मैं हूं ना. मैं हूं ना. आप सोचो कितना पावरफुल कि आपके गुरु आपको बोलते हैं, आपके मेंटर्स आपको बोलते हैं कि भगवान आपके साथ है, आप सही काम कर रहे हो और मैं भी आपके साथ हूँ. फिर आपको जोश आ जाता है, आप मेहनत करते हो. एंड वन डे फॉर ऑल दोस पीपल हु डू मेहनत विल डेफिनेटली सक्सीड. चाणक्य ने कहा था, आफ्टर 100 ट्रायल्स, आप एक्सपेरिमेंट करते हो पहली बार, 100 बार गलतियां करो, कोई बात नहीं, बट मेहनत करोगे और आशीर्वाद रहेगा एंड गाइडेंस रहेगा, डेफिनेटली यू विल सक्सीड. यस सर. एंड सर, जैसे आपने बोले गुरु का होना बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी में, बिकॉज अगर वो नहीं रहेंगे तो आपको मार्गदर्शन कोई अच्छा नहीं दे पाएगा. एंड यू हैव टू टेक दैट स्टेप. दैट्स अ ग्रेट पीस ऑफ एडवाइस. आई रियली थिंक दैट पीपल शुड हैव. सर, एक चीज और आती है इसके अलावा जो बहुत सारे लोगों को मतलब लगता है कि एक इंस्पायरिंग जर्नी चाहिए होती है. सो देयर इज वन, मैंने Q&A डाला था अपने उस पे. सो पीपल वर लाइक, we want to ask sir, how did he started his journey and what were the things he learned from that? So please आप उस पर enlighten करेंगे. मैं तो ये कहूंगा कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो बहुत बड़ी भगवान की कृपा है. ओके, तो मुझे कोई स्पिरिचुअल गुरु बाहर ढूंढना नहीं पड़ा. मेरे पिताजी खुद मेरे सबसे पहले गुरु है. सो आई Oh, बीन वेरी प्राउड टू बी बोर्न इन अ फैमिली जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी बचपन से रहा है. आज भी मेरे पिताजी, ही इज 88 ईयर्स ओल्ड. ओके, एंड दिन में 10 घंटा मेडिटेशन करते हैं. बाप रे. 10 आवर्स एवरी. आप सोचो ऐसे घर में अगर पैदा हो गया तो मेडिटेशन इज नॉर्मल टू यू, राइट? Yes, डॉक्टर obviously. के घर पे अगर आप पैदा हो गए, अब हाँ, डॉक्टर के घर पे पैदा हो गए तो आपको आधा मेडिसिन तो पता ही चल जाता है. correct. अब बिजनेसमैन के घर पे पैदा हो गए तो आधा बिजनेस कैसे करना आपको पता चल जाता है. मेरे केस में घर से ही शुरुआत हुई, बचपन से ही. तो मेरे पिताजी मुझे बताते थे कैसे ध्यान करना है, जो टीच में रामायण, महाभारत, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आगे जाते जाते मेरे को बहुत सारे उस मार्ग में अलग अलग स्पिरिचुअल गुरुज भी मिले. जैसे चिन्मय मिशन में स्वामी चिन्मयानंद जी, स्वामी Oh, तेजोमानंद जी. और मैं सब जगह कहता हूँ, आई नेवर कंपेयर टू गुरुस. ये गुरु इससे बड़ा है ऐसा कहीं नहीं हो सकता. लाइक बहुत मेरी बड़ी माँ बात तेरी सर. माँ से बड़ी है. सो एवरीबडी इज हैविंग देयर ओन गुरुस, यू शुड रेस्पेक्ट देम. तो मैंने सबसे सीखा, सबकी किताबें पढ़ी, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अलग अलग थिंग्स. एंड जिंदगी में एक ऐसी घटना हुई जिसके वजह से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई. एंड दैट इज चाणक्य. A lot of people think about Chanakya like a political thinker, statesman, बिल्कुल सही है, strategist, but many people forget that he was actually a spiritual guru also. So I've been very fortunate कि कहाँ पे भी जाऊँ, घर से लेके बाहर जाऊँ, I always meet spiritual people and discuss spirituality. That's how I got inspired and I continue to inspire others towards this path of spirituality and adhyatma.
सर जैसे बहुत लोगों को अगर अभी आइडिया नहीं है, सर ने बहुत सारी मल्टीपल किताबें, जैसे उन्होंने मेंशन किया, चाणक्य जी के ऊपर लिखी, फर्स्ट ऑफ ऑल चाणक्य नीति, चाणक्य डेली लाइफ, चाणक्य कॉर्पोरेट चाणक्य, सॉरी आई एम सॉरी, कॉर्पोरेट चाणक्य अबाउट बिजनेस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सो वो भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो बुक्स के ऊपर वो भी ले सकते हो और अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हो, हाउ चाणक्य जी इंस्पायर्ड सर एंड हाउ ही इंस्पायर्ड अदर पीपल विद दीज टाइप ऑफ थिंग्स, how he inspired the youth from learning Chanakya principles and implementing on life, then spirituality. सर जैसे आपने spirituality की बात करी यहाँ पे, एक क्वेश्चन जो सबके मन में आता है कि मैं 2 घंटा मेडिटेशन क्यों करूं, उससे क्या फायदा होगा, या मैं 1 घंटा 2 घंटे की जगह मैं 1 घंटा करूंगा और 1 घंटा मैं किसी और चीज में कुछ नया सीख सकता हूँ। सो जो एक जो हमारा फैक्टर आता है, बेसिकली कंपैरिजन भी आ जाता है, सेकेंडली उसको बैलेंस करने का आ जाता है कि मैं स्पिरिचुअलिटी, अपनी पढ़ाई, जॉब, इन सबको कैसे मेंटेन करूँ ताकि मेरे को एक वो मुकाम हासिल कर पाऊँ जो मैंने कभी सोचा नहीं था अपनी लाइफ में। सो मेनी पीपल, जैसे आपने कहा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको मन में विचार आते हैं 1 घंटा अध्यात्म या मेडिटेशन, उससे 1 घंटा पढ़ाई कर लो। हम्म। ओके, इट इज नॉट अबाउट घंटा, कितना आप समय बिताते हो नहीं, आपकी मनस्थिति क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक चाकू है और आपको ना एक सब्जी काटनी है, बराबर, और वो मतलब 1 घंटा में सब्जी काटूंगा। मैं ये नहीं कहता कि सब्जी मत काटो, बट याद रखो कि बीच बीच में यू हैव टू शार्पन द नाइफ। यस सर। नहीं तो कितना भी काटो उसमें आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा। 1 घंटा और 2 घंटा में, मतलब आधा घंटा एटलीस्ट शार्पन द सॉ। एंड फिर क्या होगा, जो 1 घंटे में आप काट सकते हो ज्यादा भी कर सकते हो और कम समय में ज्यादा काट सकते हो। So remember one thing, meditation or spirituality is not against somebody, it is for everything. तो पढ़ाई करनी है तो आप किससे पढ़ाई करते हो? मन से, राइट? यस सर। आप काम करते हो किससे काम करते हो? मन से। एंड टुडे वी आर ए जनरेशन ऑफ नॉलेज वर्कर्स। हम फैक्ट्री में बहुत कम लोग काम करते हैं आजकल। आजकल सब मोर ऑन इंटरनेट, मोर ऑन योर लैपटॉप। So करेक्ट। your major tool today for success is your mind, and the calmness of the mind comes from spirituality. तो मैं एक सिंपल आपको फॉर्मूला दूंगा, दिन में सबसे पहले 1 घंटा बिफोर यू गो टू वर्क, ओके, आपको क्या करना है। तो दिस फॉर्मूला आई हैव प्रैक्टिस इन माय लाइफ इवन टुडे। उसको बोलते हैं 20-20-20 मिनट्स। 20 मिनट आप फिजिकल एक्सरसाइज करो, योगा करो। इवन योगा इज स्पिरिचुअलिटी, राइट? हाँ। फिजिकल एक्सरसाइज। Second 20 minutes do meditation, and third 20 minutes read a spiritual book. आप देख ले, भगवत गीता है, रामायण है, महाभारत है, उपनिषद है, या जो भी आपकी कल्चर में है, लैंग्वेज में है। ओके, सो 20 minutes फिजिकल स्पिरिचुअलिटी। योगा मेक्स यू स्ट्रांग फिजिकली। सेकेंड, मेंटली यू बिकम स्ट्रांग बिकॉज ऑफ योर मेडिटेशन, एंड इंटेलेक्चुअली बिकम स्ट्रांग बाय रीडिंग। उसके बाद आप अपने काम पे चले जाओ। तो सुबह स्पिरिचुअलिटी एज ए बेस, फिर 8 घंटा काम कर लो, राइट? यस सर। जो आप ऑफिस में जाते हो किधर भी। बट देन रिमेंबर वन थिंग, शाम को सोने से पहले 2 घंटा पढ़ाई, कुछ नया एजुकेशन करना। जी सर। ओके, क्योंकि टुडे इफ यू आर नॉट लर्निंग यू विल नॉट ग्रो प्रोफेशनली। करेक्ट। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट यू हैव टू बैलेंस द थ्री। लेकिन आपको दो ही चीज करनी है, प्रोफेशनल एंड एजुकेशन, बट बेस होना चाहिए स्पिरिचुअलिटी। करेक्ट। So if your mind is ready for professional world and क्या बोलते हैं एजुकेशन वर्ल्ड, यू कैन बैलेंस एवरीथिंग। और आप कैलकुलेट करके देखोगे, मैंने आपसे सिर्फ 11 घंटे लिए दिन में। हम्म। सुबह का 1 घंटा, 8 घंटा आपको काम करनी है और 2 घंटा। सो 1 + 8 + 2 11 आवर्स। 24 घंटे में अगर आप इतना कर सकते हो, बिलीव मी, यू विल बी स्पिरिचुअल पर्सन, प्रोफेशनली सक्सेसफुल, at the same time you'll also get educated and go ahead. So this is a simple formula, हर दिन ये करना। ओके सर, पक्का आई आल्सो ट्राई टू इम्प्लीवाइज दिस इन माय लाइफ। जैसे आपने एक चीज सुनी होगी, मंक मोड बोलते हैं हम, लाइक ऑन द 21 days to 91 days जर्नी। जैसे मैं भी एक अपनी जर्नी कर रहा हूँ, अर्निंग 80,000 दिस मंथ, सो आई एम क्लोज टू अर्निंग, लाइक मैंने $400 क्रॉस किया अभी अपने $1,000 जर्नी में। सो मैंने सीखा कि मॉन्क मोड का इंपॉर्टेंस कितना है। जैसे मैं फोर्स करता था खुद को कि मेरे को 4:30 बजे उठना है, बिकॉज इफ आई हैव टू बी वेकन अप, मेरे को उठना पड़ेगा वो चीज। फिर आई गो एंड हिट माय बॉडी वर्कआउट। उससे पहले मैं मेडिटेशन करता था, ½ an hour to 45 minutes, एंड दैट वाज द थिंग। वो मल्टीपल थॉट्स, वो
दिमाग के अंदर से जगल अप होते थे कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं। फिर पता चला धीरे धीरे, आई स्टार्टेड विद 14 डेज हुए, तो थोड़ा शांति आई, मन में ठहराव आया। और एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, बहुत हताश हो जाते हैं जिंदगी में, थक जाते हैं, लगता है कि अब नहीं करना, अब नहीं हो पाएगा, तो उस चीज को कैसे ओवरकम करें? सो कभी थकान आती है, यू शुड टेक ए रेस्ट, यू शुड टेक ए ब्रेक. Don't be a workaholic, but हम्म। work efficiently. And the way to work efficiently is actually taking breaks. जैसे अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो हम्म। कंटिन्यूअसली, इट्स हम्म। नॉट गुड. करो, यूज करो, इट्स वेरी एसेंशियल टूल टुडे, राइट? हम्म। लेकिन डोंट बिकम एन एडिक्ट. So I always say, if you're using a mobile or laptop, every 1 hour, take a break for 5 minutes. दैट्स अ So ग्रेट थिंग screen time effective बनाने के लिए, you should go and take break from the screen. सर। तो इन द सेम वे लाइफ में अगर आपको थकान आती है तो सो जाओ. इनफैक्ट आई ऑलवेज टेल पीपल, इफ यू टू स्टडी कंटिन्यूअसली, टेक ब्रेक्स बिटवीन टू कोर्सेस. हमारे यहाँ पे क्या होता है, 10th स्टैंडर्ड हो गया तो 12th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड हो गया यू हैव टू गो एंड बिकम ए ग्रेजुएट, ग्रेजुएट हो गया यू हैव टू गो फॉर ए मास्टर्स डिग्री, देन यू हैव टू गो फॉर ए जॉब, गो फॉर ए जॉब, देन टू गेट मैरिड. अच्छा शादी हो गया, बच्चे क्यों नहीं हुए? अरे, and then you say I never enjoyed life because you never know how to take breaks. In fact, I always tell people between two courses, like आपने graduation किया, I'm just giving an example. Don't go for the next course immediately. Take 1 year break, go for a sabbatical, घूमो. Why not? इंडिया में वो आदत ही नहीं है. करेक्ट। घर पे बैठे हो, starts with parents only. अरे क्या कर रहे हो? अरे भागना है, भागना है, भागना है. कहाँ भाग रहे हो कभी पूछा ही नहीं. And सही let बात me है। tell you, break is good. So थोड़ा थोड़ा करो और ज्यादा करो. Eat little, but eat more. But the life should be not just quantity, but also quality. So जब आपको थकान महसूस हो जाए, थोड़ा सो लो, but don't become lazy. Get up again and start working again when you are refreshed. Sure, sir. Sir, there is one also question on time management. People से हमारे पास समय नहीं, गिनती घंट जो हमारा दिन की दिनचर्या होती है, दिनचर्या के 24 घंटे हम सबके पास होते हैं, बट अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, मैं दूसरी चीजें कैसे करूं, मैं नई सीखे कैसे सीखूं, मैं इतना टाइम इसको नहीं दे सकता, मेरा फैमिली टाइम रह जाता है, तो उस पे क्या पीस ऑफ एडवाइस है आपकी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में टाइम का बहुत वैल्यू होता है. ओके, तो मैं कहूंगा कि टाइम शुड बी लुक्ड एट फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव्स. दो चीजों से समय का नाप होता है. वन इज द क्लॉक, राइट? यस सर। तो हम कहेंगे अच्छा 20 मिनट है अभी हमारे पास, 10 मिनट है, 1 बज गया है, शाम को 6 बजे दोस्तों से मिलना है. हम्म। दैट इज टाइम इन द क्लॉक. बट देर इज अनदर डायमेंशन, टाइम इन द माइंड. और ये ज्यादा लोग को सिखाया नहीं जाता. व्हाट इज टाइम इन द माइंड? यू कैन डू वन थिंग साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम. फॉर एग्जाम्पल, आप आपके माँ पिताजी के बेटे हो. जी। ओके, यू स्टूडेंट, हम्म। you may be a brother or a sister to somebody, you may be an employee to somebody. करेक्ट? तो अभी टाइम कहाँ गया? एक ही टाइम में यू आर अ स्टूडेंट ऑल्सो, सेम पर्सन इज ऑल्सो सन टू पेरेंट्स, brother or sister, an employee or employer, a student or a teacher, right? यस सर। The thing is that we should know the art of managing our clock time based on the roles that we have. For example, okay, आज अगर let's say, आज अगर नहीं, आज तो है आपके माँ पिताजी का बर्थडे है, राइट? सॉरी, वेडिंग एनिवर्सरी. यस सर। दैट बिकम्स योर प्रायोरिटी फॉर द डे. इसका मतलब ये नहीं कि आज आप पॉडकास्ट नहीं करोगे, दैट इज ऑल्सो प्रायोरिटी. बट यू विल प्लान कि चलो 12 बजे कर लेते हैं, फिर उनके साथ आपको शायद बाहर जाना होगा, खाना खाना होगा. बट यू हैव प्लान्ड इट कि कुछ गिफ्ट भी देना है, सेलिब्रेट भी करना है. यस सर। टुमारो प्रायोरिटी में चेंज, क्योंकि चलो यू विल ऑलवेज लव योर पेरेंट्स, बट वो कल का जो दिन है, दिनचर्या, इट विल बी डिफरेंट. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टैंडर्डाइज्ड. सुबह उठना है, मेडिटेशन करना है, वो करना है. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रायोरिटी ऑफ द डे. यस सर। ओके, प्रायोरिटी ऑफ द डे इज ऑलवेज डिफरेंट. एग्जाम का दिन है, so all your priorities become that. Or you are going outside for a vacation, your priority will be different. You have to understand, one is called daily discipline, daily timetable.
फॉर एग्जाम्पल बर्थडे हो या नहीं हो, यू हैव टू गेट अप एंड ब्रश योर टीथ, राइट? सो दैट्स अ डेली टाइम टेबल, तो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. सेकंड इज डेली प्रायोरिटी, दैट्स वेयर प्लानिंग कम्स. सेकंड एंड द थर्ड इज बीइंग फ्लेक्सिबल. बहुत सारे लोग जो होते हैं जब दोस्तों को मिलने गए, अच्छा मैंने प्लान किया था मेरे दोस्त को मैं 1 घंटा मिलूंगा, 6 to 7, but that friend, he or she wants more time from you because maybe she has gone through or he has gone through a heartbreak. तो आप तब नहीं बोल सकते अरे 7 बज गया अभी मैं जा रहा हूँ. Yes, तेरा sir. जो भी प्रॉब्लम है, अरे you to understand that yes, you have to spend 1 hour, 6 to 7 जो आपने प्लान किया, but if that person requires another 10-15 minutes, half an hour, you cannot say अभी मुझे जाना है, because you will be the worst friend for that particular person during that time. Correct. बहुत deep चीज है So it's sir. very important that you have to be a complete human being, not only a person who is very good at workplace. You have to be a good person in the family. You have to be a good friend, a good professional. So please understand, plan out your work and work out your plan. Sure, sir. Plan out your work and work out Work your out plan. the This plan. is one formula, a spiritual formula that Swami Chinmayanand ji gave. So you can Okay. plan everything, but never become rigid in your time management. Be flexible. श्योर सर. सर आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट इसके अंदर बोला कि we go through heartbreaks and a lot of things that are in our lives. So if someone is dealing with that, कि उसका हार्ट ब्रेक हुआ है, उसकी लाइफ में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सन है जो चला गया, सो वो बहुत इम्पैक्ट डाल देता है किसी की लाइफ में. सो आप क्या उनको एक सजेशन देना चाहेंगे कि वो उस चीज से वापस कैसे उठे एंड अपनी लाइफ में वापस कैसे आए? देखो लाइफ में हार्ट ब्रेक्स आर नेचुरल. Okay, because we are human beings, we have emotions, right? So हम दिल से सोचने वाले ज्यादा है, दिमाग से नहीं. That is how we human beings are. So दिल का दर्द सिर्फ उस व्यक्ति को ही समझ में आता है. But let me tell you, heartbreaks is not just about emotional or romantic heartbreaks. Different stages of life, we have different heartbreaks. For example, आपको याद होगा शायद हम स्कूल में थे, 4th-5th स्टैंडर्ड. Yes, You sir. know, हमारे टीचर ने हमारा बेंच चेंज कर दिया. You हाँ. had a friend, या फिर डिविजन चेंज कर दिया. You are with a friend in the same class for 5 years and 6th year में उन्होंने बोला नहीं, your division is different now. तभी भी आपको हार्ट ब्रेक हुआ ना. अरे कैसे टीचर है. You know, she changed my class from this Yes, class sir. to that. She changed my bench partner. That's a very small heartbreak, but दिल तो दर्द होता ही है. In the youth days, it's very romantic heartbreaks. Correct. And sometimes it stays long for life, you know. ये लड़का ये लड़की जिससे आप प्यार करते हो. You know, she walked away from your life or you walked away from her life, whatever. It's natural and you should feel for it also. If you're not having feelings, then you are not a human being. आगे जाके भी heart breaks होने वाले हैं, different. For example, you change job from one company to another. Okay, that's a heartbreak. It's not easy. It's a very emotional moment because you've been working in that company for 4-5 years and then you have to change. लड़कियों के तो ज्यादा होते हैं because they have to move from one house to another when they get married also. Okay, and then go to another way. Suppose you're an entrepreneur. Okay, somebody whom you are working with, whom you're trained, he or she wants to go to a different company or he wants to be an entrepreneur. That is also heartbreak in a different way. आगे जाके maybe your mother dies, your father dies. You know, because age में वो भी चले जाएंगे. Maybe one of your spouse dies. Husband के लिए wife, wife के लिए husband. So think there's heartbreak there also, right? You are going to miss that person lifelong. Now, how do you deal with heartbreaks? ये आपका सवाल था. तो ये लाइफ में याद रखना, डिफरेंट स्टेजेस पे यू गो थ्रू डिफरेंट इमोशंस. तो बचपन में टीचर ने मेरा बेंच चेंज कर दिया, आगे जाके भगवान ने मेरी माँ को ले लिया. But remember one thing, look at it positively. Okay, you have to be rational. मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर आपने एक क्लास से दूसरे क्लास चले गए, you are not forgetting the old friends, but you're going to make new friends. तो पहले बार आपके साथ शायद एक क्लास में 40 या 50 फ्रेंड्स होंगे. Now when you go to another division, you'll have another 50 new friends. So actually आपकी फ्रेंडशिप बढ़ गई. Correct. Okay, so now you have 100 friends, and you can always meet your old friends after the school hours, right?
यस सर, ट्रू। हम फिर भी साथ में स्कूल जा सकते हैं, आ सकते हैं। इन द सेम में लाइफ में, सपोज you move from one house to another. In fact, I say it's a positive thing. और पहला घर जो है उसके व्यक्ति भी अपने ही हैं, नए घर में भी लोग अपने ही हैं। Now it हाँ, becomes a different challenge. तो अपना दिल बड़ा करो। So what I'm saying is that yes, heartbreaks are there, but never forget the good days spent with those people. यस सर, श्योर। तो जैसे समझो, फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज सम पर्सन जिसके साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो, यू हैव अ रिलेशनशिप एंड दैट इज नॉट वर्किंग आउट, इंस्टेड ऑफ बीइंग नेगेटिव अबाउट दैट थिंग, अरे यार, it's not working fine, look at the good things about that person, कि हमने कितना अच्छे समय साथ में बिताया, and you'll be surprised, your mind becomes positive and you can continue being good friends, right? यस सर। And महाभारत में कहा गया है, very interesting, महाभारत में कहा गया है कि those people who move away from your life, those people who move away from your life will come back to your life in a different form at a different time. जो आपके जिंदगी से चले गए वो आपकी जिंदगी में वापस आएंगे कोई और समय में और कोई और परिस्थिति में। दैट टाइम यू कांट से, देखो यस ये सर। हो लाइफ, लाइफ इज नेवर कंप्लीट कि चलो दिस इज ओवर, नथिंग इज ओवर, लाइफ इज कंटिन्यूअस चेंज। और लास्ट चाणक्य फॉर्मूला, कीप योर हेड अबव योर हार्ट। ओके, भगवान ने हमारी सृष्टि ऐसी बनाई कि दिल से सोचो बट दिमाग को भूलो नहीं। यस सर। Okay, remember, have sentiments, but don't become sentimental. Have श्योर। emotions, don't become emotional. Then you'll always be, having mental health issues. So दिल से सोचो, दिमाग से भी सोचो, और भगवान से प्रार्थना करो और आगे बढ़ो। दैट्स अ ग्रेट एडवाइस सर। लाइक आपने जो वो दोस्त वाली बात बोली और बहुत ऐसी सारी चीजें, तो जो चीज मैं करता हूँ यूजीसी क्रिएशन सर, बाकी एक्सपीरियंस नहीं, मैं आपसे बहुत छोटा, आई एम यंग पर्सन हु इज लर्निंग थिंग्स, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड, अगर आप किसी को ऐसे प्यार करते हो, रिलेशंस में देखते हो, या किसी के लिए हिंज क्या बोलते ईर्ष्या रखते हो या नेगेटिव थॉट्स रखते हो, अगर आप उसको सोचोगे वो बहुत छोटा सा बच्चा है, ही इज वेरी स्मॉल एंड ही इज वेरी क्यूट वन, आपको उसकी कोई भी बुराई नहीं देखनी, देन यू स्टार्ट डेवलपिंग मेच्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ इन लाइफ। ये मैंने सीखा और देखा। सो आपका क्या कहना है कि इज इट अ राइट वे टू थिंक इन दैट वे? Absolutely. In fact, relationship में it is not the age that matters, but maturity that matters. इनफैक्ट मैंने बहुत सारे परिवारों में देखा है, द चिल्ड्रन आर मोर मेच्योर्ड देन देयर पेरेंट्स। यस सर। देखिए, एज डजंट गारंटी मेच्योरिटी। करेक्ट। मेच्योरिटी कम्स फ्रॉम लर्निंग फ्रॉम लाइफ। हमारे इंडियन सोसाइटी में दिस वन थिंग विच इज लिटिल बिट नेगेटिव, पूरा नेगेटिव नहीं है, आई एम सीनियर टू यू, जी सर। मैंने बहुत ज्यादा बारिश देखी है। अरे बारिश देखी होगी, तू मेरे से 10 साल बड़ा होगा, या माई पेरेंट्स वुड बी 25 years elder than me, but the question is that are they matured? And I always tell youngsters, if you have a generation gap, I expect the children to bridge the generation gap, not the parents. करेक्ट। यूजुअली एक्सपेक्टेशन क्या है कि पेरेंट्स को ज्यादा समझ होनी चाहिए। देखो, अनुभव एक बात है, एक्सपीरियंस इज वन थिंग, एंड समझ, मेच्योरिटी इज अनदर थिंग। सो यू कैन बी यंग yet matured, you can be old yet immature. So be matured in relationship and you'll grow in life. बिल्कुल अच्छी बात करी सर आपने, बिकॉज जो अभी हमारा जो एज ग्रुप है वर्सेस हमारे मम्मी पापा का, दे आर वेरी ओल्ड, वो 1960s से हैं, कुछ चीजें नहीं मिलती। मैं अक्सर क्या करता हूँ, जैसे मेरे को कुछ भी बात करनी हो, मैं अपनी मम्मा के बहुत ज्यादा क्लोज हूँ, और जो आपने एक चीज बोली थी, जो डिटैचमेंट के लिए, हार्ट ब्रेक्स के लिए, वो सृष्टि का नियम है, जो इस दुनिया में आया है वो इस दुनिया से जाएगा, एंड यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर ऑन दैट अर्ज कि हाँ ये चीज होनी है। सो जब भी मैं उनके साथ ऐसे बैठता हूँ, शी इज वेरी एजेड, लाइक मम्मा की एज है मेरी 54 के आसपास, अभी 54-50 में, एंड ट्राई टू फिगर आउट दैट ब्रिज गैप। मैं उनको हमेशा अपने कॉलेज की कुछ मस्ती कहानियां बताता रहता हूँ, मम्मी अब मैं ये करने वाला हूँ। वो ऐसे डरती है कि तुम इतने छोटे से तुम कैसे करोगे। आई एम लाइक, एक्सपीरियंस आएगा, गलती से सीखूंगा, बट उसको वापस नहीं करूंगा। एंड दिस इज हाउ आई ट्राई टू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप विद माई पेरेंट्स। मैं समझना चाहता हूँ उनको बहुत ज्यादा, एंड आई ऑल्सो से आप भी ये चीज जरूर प्लीज कन्वे करें यूथ को कि जो ब्रिज गैप है, मम्मी पापा को इग्नोर करने से नहीं,
या उनसे इरिटेटिव बात करने से नहीं आएगा, आप उनके पास बैठो, उनको समय दो, उससे आएगा। प्लीज, आई वांट दैट टू प्लीज गेट एनलाइटेंड सर। In सो fact, I can tell you this: the value of your parents you will understand after they are gone. करेक्ट। देखो, आपने बहुत बड़ी बात कही कि बेसिकली आपके पेरेंट्स, इनफैक्ट आई विल गो टू द एक्सटेंट ऑफ इवन टेलिंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, फॉर्चुनेट आर द पीपल हु ग्रैंड पेरेंट्स आर स्टिल अराउंड। उनके साथ बैठो, उनका सुनो, उनको सुनाओ। वो नहीं रहेंगे लेकिन यादें रहेंगी। वो तो सर दिल में So रहती they है हमेशा। are forever with you physically। वो सृष्टि का नियम है, the old people will go, young people will become old, and the young generation will become old। ये चलता ही रहेगा। इसको कहते हैं काल चक्र। यस। लेकिन to spend time with them now when they are physically with you, when they are not, you will remember them forever। और मैं आपको एक टेक्नोलॉजी का एक उदाहरण दूंगा आपको। जी सर। एंड प्लीज ट्राई, ईच वन ऑफ यू लिसनिंग, एक चीज कीजिएगा। और हमने एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया, सी हाउ द वाइज पीपल, इफ यू स्पेंड टाइम विद देम, कैन गाइड यू आफ्टर दे आर गॉन। तो बोले तो अभी चले गए, अभी तो है नहीं फिजिकल फॉर्म में, कैसे गाइड कर सकते हैं? तो दिस इज वन एग्जाम्पल आई वांट टू टेल यू, एंड आई वांट एवरीबॉडी टू डू इट। मेरे एक दोस्त है, उनके परिवार में देयर वाज दिस ग्रैंडपा एंड ग्रैंड मॉम। उनके शादी के 50 इयर्स हो गए, जब 50 साल हो गए, एंड दे वर ऑलमोस्ट लाइक 70-80 इयर्स ओल्ड, द कपल। ओके, तो पूरा परिवार, बच्चों बच्चों के बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, एंड सम ऑफ देम आर आल्सो ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। ओके, तो हमने कहा दादा दादी, बिकॉज दे आर गेटिंग ओल्ड। ओके, 50 नहीं, सॉरी 60 इयर्स ऑफ मैरिज। आप सोच के देखो, एंड देवर ऑल इंस्पायर्ड। तो बोले चलो सेलिब्रेट करते हैं, वो सब हो गया। बट यू नो व्हाट दैट फैमिली डिड, वेरी इंटरेस्टिंग। हर व्यक्ति ने एक क्वेश्चन बनाया अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कि मुझे उनसे क्या पूछना है। एंड यू नो व्हाट दे डिड, एवरीबडी सैट इन अ हॉल, एक वीडियो कैमरा लिया, और ये प्रश्न इसका है, आपके बेटे का है, बेटी का है, पोता का है, एंड दे रिकॉर्डेड एवरीथिंग। दैट्स सो स्वीट। वो रिकॉर्डिंग 4 घंटे का हुआ। कैन यू बिलीव इट? सो आजकल तो आप नाइस। मोबाइल पे कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हो, व्हाई डोंट यूज इट? नाउ नाउ ये तो हो गया रिकॉर्डिंग। नाउ बोथ द ग्रैंड पेरेंट्स आर नॉट देयर, चले गए फिजिकली, दे आर नो मोर देन, दे आर डेड। बट यू विल बी सरप्राइज्ड, द होल फैमिली, whenever they have any problem, they listen to that recording and they get a solution। दैट्स अ ग्रेट। तो व्यक्ति चले गए लेकिन उनका ज्ञान और अनुभव उस फैमिली में रह गया। सो माय सजेशन इज दैट उनके साथ बैठो, इफ पॉसिबल मेंटल रिकॉर्डिंग करो, डिजिटल रिकॉर्डिंग करो, या नोट बनाओ। एंड लेट मी टेल यू, वो आपको जिंदगी भर उनके जाने के बाद भी उसका फायदा होगा। दैट इज मेच्योरिटी। दैट्स द ग्रेट थिंग। तो आपने, आई होप, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखी होंगी इस पॉडकास्ट के थ्रू, एंड ये सिर्फ स्टार्टिंग है। मैं भी सर को और थोड़ा सा परेशान करूंगा आगे चल के। मैं ट्राई करूंगा एक ऑफलाइन पॉडकास्ट होल्ड करने का, जिसमें हम और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। टिल देन, थैंक यू so much all for watching this podcast, and thank you so much sir for giving your valuable time and insights to all of us. मिलते हैं अगली बार नए एपिसोड के साथ। मुसाफिर साइनिंग ऑफ।